देखो जर्मनी में ना प्रॉब्लम है अभी जर्मनी में वर्क फोर्स बहुत कम है, तो वो बहुत रिफ्यूजीज को ले रहे हैं क्योंकि वो छोटा काम करेंगे, कारपेंटर का काम है ना, वेटर का काम, छोटा काम जो है, ठीक है। हम्म, और फिर वो हाईली स्किल प्रोफेशनल को बुला रहे हैं बाहर से कि भाई हमारे यहाँ पे जो एडवांस काम है उनको काम करने के लोग नहीं है। हम्म, तो जब वहाँ काम करते हो, वहाँ टैक्स पे करते हो, उनको पैसों की जरूरत है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए टैक्स पेयर नहीं है अभी। right. और क्योंकि वहाँ पे लोग बच्चे पैदा नहीं करते, वहाँ की जो पॉपुलेशन यूरोप, की जो, राइट। हाँ, मुझे जर्मनी लगता में है जो ये उनकी, मुझे लगता है ये ओनली जर्मनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे यूरोपियंस की प्रॉब्लम हो हाँ। चुकी है। Hi everyone, my name is Rahul and we are on Engineers Dialogues today, and this is our first episode of Engineers Dialogues, and today we are going to discuss about data science, and we have with us my guest, my friend Mr. Samir Chaudhary. Hi Samir. Hi Rahul, it's nice to meet you after a long time. I think we had a good time in Orange. Just to add, Rahul and I, we were working together in 2014-15 with Orange Business Services. And it's been 8 years, and after 8 years, we have connected again. It's nice to connect and get to see each other. Yeah, and it will be nice to talk about data science on your channel. It's a good initiative you have taken. It's a nice tag name, Engineering Dialogues, and Yeah, wonderful to be here. Thank you for inviting me as your first guest. Means a lot. Thank you. and thanks for coming up on a very short notice. And also, No worries. Yeah. I would like to add, like he is currently settled in Germany. So we will talk about how to be settled in Germany, the process, and everything. So yeah, let's start. Let's not waste the time. So Samir, would you like to give us a little bit brief uh, about yourself, your Yes. experience? Yeah, definitely. I love to. Okay. So, my name is Samir Chaudhary, and I have 14 plus years of experience in application development and maintenance in cloud and data center environment. I'm a cloud agnostic professional, so no matter which cloud platform you have or data center environment you have, uh, I, I, I can get to it because I have deep, strong fundamentals in cloud technologies. Plus, I come from an application programming background, so I've done programming in Perl, Python, PHP. I was Sun Java certified. I have done open source, OpenStack code changes, which is a million line code base without any comments. This code changes were not contributed back to open source community, but then my company is still using my code because it's part of the private cloud, and it was one of the good projects I worked in my career. I have worked with IITians. I have led IITians, hired IITians, and apart from that, I've done full stack also. So I've done full stack Okay. application development, scripting, cloud DevOps architecture, and recently I moved myself to data science. I just love it because the possibilities are endless. Um, Apart from that, yeah, my interests are doing yoga, practicing spirituality, and I love doing mathematics, astrophysics, uh, Okay. and it's yeah, that's we are a small family. Recently, we became parents, me and my wife. Yeah. So we are settling in Congratulations. Germany. Thank you very Congratulations. much. It means a lot, to have this kid along with us. You can hear him hearing, talking actually right now, Yeah. and he's very young. He's just 9 months old, and that's all about me. Thank you. Okay. So yeah, it will be very like अच्छा experience रहेगा for the youngsters to know about your experience because you have almost 15 years of experience. तो आप Yes. हमें कुछ लास्ट कंपनी के बारे में बताना चाहेंगे फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन डेटा साइंस. Okay. So,
See, I did a project in data science in 2018, uh, where I came across this platform called Power BI. Okay. तो Power BI कुछ नहीं है, ये एक विजुअलाइजेशन टूल है. तो once you have the data, you can visualize it in graphs, bar charts, lines, and you can draw insights from it. So it is not about data science first, it is about data analysis. It is very important to understand what is data science, what is data analysis, what is big data, to have your firm grounding in this field. Because when you talk as a professional, you should make sense. Um so, so more recently, I am working with a product-based client, and they have this conveyor belt, which is responsible for packaging of products. And Okay. when you package the product, it's a huge machine. It's a huge machine with a lot of cameras around it, and they capture a lot of data. And they are always trying to make this machine more efficient. So they have more than 650 plus features, and the camera takes picture, processes it, AI processes the picture, discards it, accepts it, and once they do it, they they collate a lot of data. Okay. So once this data is available to us, our job is to develop insights from this data and make sense out of it, and see which station on this machine or which device metric on this machine is can be tweaked upon, or can be improved upon to increase the efficiency of this whole packaging machine. Okay. Because during packaging, a lot of coffee powder or tea powder gets spilled, and then have data develops anomalies. So the part of the job is to consider all the anomalies along with the data and make sense out of it. And it's a lot of data actually. I've heard it's 2.4 billion records, and it is hosted in Snowflake. And I'm I got a chance to work on that. I'm working on that. Yeah. Okay. Okay. So actually, it is I think nice use case on which you are working on. And recently, I see you have posted very good. I mean, your work on LinkedIn. तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे? तो वो जो काम है, देखिए, मैंने काम के बारे में तो कुछ लिखा नहीं लिंक्डइन पे. मैंने बस ये लिखा कि मैं उस पे काम कर रहा हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैंने कुछ गेम चेंज एनालिटिक्स पब्लिश करी है. उसका एक बैकग्राउंड ये है कि जब मुझे इस प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड करा गया, तो लेट मी टेल यू, even the stakeholders have little idea about how much data they have. Okay. Okay, they have an objective कि भाई, we need to make this machine more efficient, this process more efficient. We need to reduce the wastage, right? And for which they have so many features in this machine. They have side cameras, bottoms camera, flat up camera, and then they have different angles. तो वो सब जब डेटा आता है, उसके बाद उनके पास कुछ What was डेटा the रिकॉर्डर्स हैं. what was the size of data? तो डेटा का साइज तो 2.4 बिलियन रिकॉर्ड्स है. Billion records. या वो काफी काफी. तो उनके पास दो लाइंस हैं. एक है पायलट लाइन और एक इंडस्ट्रियल लाइन है. तो अभी हमने पायलट लाइन का एनालिसिस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लाइन पे हम कर रहे हैं अभी. तो उसमें जब हम स्नोफ्लेक में क्वेरी करते हैं, तो हम जब डेटा निकालते हैं तो हम लिमिट डाल के निकालते हैं, क्योंकि हमें हमें इतना डेटा निकाल के हमें भी समझ नहीं आएगा कि क्या है उसके अंदर, राइट. और उसके उसके बाद फिर जो उसके फीचर्स हैं उनको स्टडी करते हैं कि उन फीचर्स में से हमें क्या क्या मिल सकता है. अब देखो, कोई बंदा बाहर से आएगा और उसको आ, कुछ पता नहीं है, फ्लैट कैमरा क्या है, बॉटम कैमरा क्या है, वो मशीन क्या है, और तो वो कैसा उससे एनालाइज करेगा, राइट. Analyze. उसको Yeah. तो कुछ 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 पता ही नहीं पता, Product ऊपर knowledge से प्रोसेस. product knowledge सबसे important है. Right. करेक्ट किया. तो जब मैं आया तो मैंने उनको
बहुत क्वेश्चन पूछे क्योंकि द पार्ट ऑफ द जॉब इज टू आस्क राइट क्वेश्चंस. So they gave me a video in which they showed me how these packages get packaged, number one. हम्म, और जब वो पैकेज हो जाते हैं तो उसके ऊपर एक पीपीटीज हैं, उस पे सारे मॉड्यूल्स, कैमरा, स्टेशंस के नाम है. वो सब मैंने पढ़े, उनका डिस्क्रिप्शन है. तो वहां से फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि भाई ये रिजेक्शन पैरामीटर्स हैं, तो ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और ये क्रिटिकल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं. और फिर उन्होंने मेरे को उसका डेटा ला के दिया. एंड देन मैंने उनको बोला कि ये आप जो ये आपके 650 फीचर्स हैं, इन पे फोकस ना करके अगर आप सिर्फ रिजेक्शन पैरामीटर्स पे फोकस करो तो आपको ये समझ में आएगा कि पहली बात है कि कौन सा रिजेक्शन पैरामीटर्स कॉजिंग हाउ मच वेस्टेज परसेंटेज, नंबर वन. एंड सेकेंडली, व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ रिजेक्शन पैरामीटर, the correlation between the rejection parameter and the non-rejection parameter. हम्म, तो मैंने सारा फोकस अपने रिजेक्शन पैरामीटर पे डाला, उनका कोरिलेशन निकाला विद अदर्स, और वो मैंने पब्लिश किया. एंड दे रियली लाइक माय अप्रोच, क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं था कि कौन सा फीचर कौन सा उठाना है. क्योंकि डेटा साइंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फीचर इंजीनियरिंग, कि आपके फीचर, कौन से ओके, फीचर. हाँ, फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं उसको, कि ओके, आपके कौन से फीचर्स जो हैं आप एमएल मॉडल मॉडल को, मशीन लर्निंग मॉडल को, मैथमेटिकल मॉडल को आप डालेंगे तो जितने अच्छे फीचर्स आप डालेंगे आपको रिजल्ट उतना एफिशिएंट मिलेगा. ओके, राइट. ओके, आपको मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ. कोई एम्प्लॉय डेटा डेटाबेस है और आप उसमें एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय डीओबी है, डेजिग्नेशन है, और आपको बोलते हैं कि भाई उन एम्प्लॉय का नाम बताओ जो 2028 में रिटायर हो रहे हैं. ओके, तो आपको पता है 60 साल के में रिटायर होते हैं, तो आप बता देंगे कि भाई ये बंदे रिटायर हो रहे हैं. राइट. राइट, अब अब एक एमएल मॉडल जो आपको ये बात बता रहा है, उस मॉडल के अंदर आप डालेंगे उसका जेंडर क्या है, उसका एड्रेस क्या है ना, उसकी करेक्ट, एज. एज तो इम्पोर्टेंट हो गई, चलो. इम्पोर्टेंट, या फिर उसकी हॉबीज क्या है, या ऑफिस कितने बजे वो आता है, कितने घंटे वो काम करता है, कितने घंटे वो ब्रेक लेता है. ये सब डेटा आप मॉडल को डालोगे तो मॉडल जब डेटा प्रोसेस करेगा तो उसकी कंप्यूटेशन में भी टाइम लगता है एक्चुअली में. इट इज वेरी कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव चीज. ठीक है. उसकी कॉस्टिंग बहुत होती है. वो मॉडल प्रोसेस करके देगा, फिर वो आपको डेटा देगा, तो वो कहेगा यार ये जो रिजल्ट आपको आया है ये आपको 2 दिन में आया, तो कितना कंप्यूटेशन लगा. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये. मगर आप सिर्फ उसको देते हो उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, है ना. तो राइट, सिर्फ दो दो फीचर दे रहे हो आप, दो फीचर दे आएगा, और दो फीचर जाने के बाद वो रिजल्ट आपको 2 घंटे में मिल जाएगा. राइट. तो राइट, कॉस्ट कम लगा, प्लस मॉडल एफिशिएंट बना. राइट. मॉडल एफिशिएंट, राइट, तो डेटा तो फीचर इंजीनियरिंग का यही काम है कि आपके पास जो फीचर्स हैं आपको कौन सा फीचर पकड़ के मॉडल को फेड करना है, और उस मॉडल से आपको उसका वैल्यू अच्छा मिले. ओके. ये यूज केस तो आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया. ये हम्म. हो गया आपके करंट कंपनी का यूज केस जो आपने इम्प्लीमेंट किया है. और कोई करेक्ट रियल किया. टाइम एग्जांपल आप लेना चाहोगे जो लेमैन लैंग्वेज में नॉन टेक्निकल पर्सन को भी वो समझ में आ जाए कि व्हाट इज द देखो, वर्क ऑफ डेटा साइंस. हाँ मैं बताता हूँ. देखो यार, देखो जीवन में ना कोई भी काम करना है अगर आपको, तो उसके लिए ना मेथोडिकल होना बहुत जरूरी है. अगर आपको खुद नहीं आता ना, तो जिसको वो आता है वो कैसे करता है ये सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके स्टेप्स क्या है, नंबर वन. ठीक है. राइट, तो अगर आप किसी लेमैन को पूछो कि डेटा साइंस को बताना है कि क्या है, व्हाट इज द डेटा साइंस अबाउट, तो सब ये बताओ कि हम लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं. देखो, साइंस एंड हिस्ट्री गोज इन पैरेलल. साइंस और हिस्ट्री जो है पैरेलल में चलती है. तो अभी ह्यूमन हिस्ट्री में इतने डेटा इवेंट्स हुए हैं, वॉर्स हुई हैं, कभी सुनामी अर्थक्वेक आया है, कभी कोई हिटलर पैदा हो गया. तो वो सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, अगर आप एक मॉडल को फेड करोगे तो यू कैन प्रिडिक्ट इवेंट्स, फ्यूचर में क्या होने वाला है. राइट. तो और सुनामी जैसे जिस तरह से सुनामी आई है, राइट, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो या इनको भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है फ्यूचर में, इस पे काम हो रहा है. या तो इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है. प्लस देखो, जैसे जर्मनी में हिटलर हुआ, हमारे यहाँ कोई और लीडर हुआ, यूएस में कोई हुआ. दीज आर नॉट बैड और गुड लीडर्स. ठीक है. बट
ह्यूमन बिहेवियर भी डेटा साइंस है। ओके। कि एक पॉपुलेशन में ना कोई ऐसा बंदा आएगा इतने सालों के बाद जो बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर। राइट। तो ये भी डेटा साइंस है एक्चुअली में। हम्म। तो और हमारा जो कल्चर है इंडिया का, हिंदुइज्म, मैं काफी स्पिरिचुअल हूँ तो उसमें काफी डेटा साइंस है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे ना काफी सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको, और हमारे शास्त्र में भी लिखा है, उनके 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 वो है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, श्लोक श्लोक है संस्कृत में, कि चलो। मद में यस। डेटा पॉइंट, कि मैं डेटा पॉइंट्स दें कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो आपका पुत्र होगा, और ऐसा ऐसा होगा तो पुत्री होगी। ये उसके राइट। ये उसके वो हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। और फिर उसके डेटा पॉइंट दे रखे हैं कि अगर उनके लेडी के मदर के ये बेबीज हुए हैं और बॉय के मदर की ये बेबीज हुए हैं और ये बेटा है, तो बेबी की ये प्रोबेबिलिटी है, और गर्ल की ये प्रोबेबिलिटी है, बॉय की ये प्रोबेबिलिटी। तो राइट। ये काफी, तो हमें समझना चाहिए जो भी डेटा हमारे अराउंड है ना, इट रिपीट इटसेल्फ, लाइक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। राइट। राइट। तो उस डेटा से इंसाइट निकालना, उसको समझना, ये एक डेटा साइंस का इम्पोर्टेंट काम है। और 80% ऑफ द काम डेटा साइंटिस्ट का ये होता है कि वो ये समझे कि डेटा को यूज कैसे करना है और क्या निकालना है उससे। बाकी ओके। मैथमेटिकल मॉडल में फीड करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, ये तो एक क्वांटिफाइड काम है कि इसको क्वान्टिफाई, क्वांटिफाई कर यस यस। सकते हो आप। वो तो बट एनालिसिस के बट बाद का काम हो गया। डेटा फीड करना हाँ, इज द फर्स्ट थिंग। राइट। हाँ, और जो नॉन क्वांटिफाइड है वो ये हो गया कि आप डेटा जो है, आप उसको कैसे समझते हो, उसे कैसे ऑब्जेक्टिव आप मतलब निकालोगे। तो ओके। ये डेटा साइंस का एक मतलब एक स्पेक्ट्रम है। और आप इसे तभी सीख सकते हो जब आप लोगों को देखो करते हुए और खुद भी ट्राई करो। तो ओके। वही है। ओके। आई थिंक यूज केस वाइज हमने दो यूज केस डिस्कस कर लिए। लेट्स हम्म। मूव ऑन द टॉपिक लाइक हाउ यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी। अच्छा, तो देखो, मैं हमेशा से ही, देखो, जब मैंने इंडिया में इतना काम कर लिया ना, तो मुझे लगा यार कि आई हैव लॉट ऑफ पैशन एंड हंगर इनसाइड में कि भाई कुछ करना है, मतलब ओके। मतलब, तो जीवन के जो 8 घंटे हैं ना, इट शुड मेक सेंस टू योर लाइफ। यू शुड नॉट फील कि यार हम नौकरी कर रहे हैं। यू शुड फील लाइक जो काम दिल से मन बंदा का कर रहा है, वो बंदा वो काम कर रहा है, ठीक है। राइट। राइट। तो मैंने क्या करा कि आई आई हैव डिस्कवर्ड इंडिया ऑलरेडी। तो मैंने कहा बाहर जाते हैं और बाहर जाके एक्सप्लोर करते हैं, उन लोकेशन में काम करेंगे, फेल होंगे कोई बात नहीं, फेलियर अ राइट। पार्ट राइट। ऑफ लाइफ, गिरेंगे उठेंगे भागेंगे फिर से। और उनके बीच जाके काम करना है यार एक्चुअली में, ठीक है। तो जब मैंने ये सोचा, तो मैंने अप्लाई करना शुरू किया। बहुत सारे इंटरव्यू दिए मैंने, बहुत सारे, मतलब ओके। इंटरव्यू से इतना सीखा मैंने। तो आपने ये डायरेक्ट डायरेक्ट ऑन साइट के लिए इंटरव्यूज दिए या फिर आपने यहाँ पे किसी कंपनी को इंटरव्यू दिया जो ऑन साइट पे भेजेगी ऐसा इंडिया में? नहीं 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 नहीं, मैंने डायरेक्टली जर्मनी की कंपनियों को अप्रोच किया। ओके। और मैंने अपना पोर्टफोलियो उन्हें शोकेस किया, अपने आप को बेचा। उसे सिंपल कहते हैं, अपने आप को बेचना, ओके। कि क्या? भाई मैं कि मेरी ये स्किल है, मैं ये कर सकता हूँ। राइट। और उन उन जब आप बाहर से भेजते हो ना रिज्यूमे, तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना भी बड़ी बात है एक्चुअली में। वो बड़ी बात। शॉर्टलिस्ट भी नहीं होता है, राइट। और जब शॉर्टलिस्ट रिज्यूमे हो जाता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, तो आपको वो स्क्रीनिंग करते हैं कि आप किस लायक हो, आप बात करने के लायक हो या नहीं हो, हायरिंग मैनेजर से। राइट। राइट। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग में ये देखते हैं वो, ठीक है। करेक्ट। आप कितने कितने पैशनेट हो, कितने नहीं हो, राइट। तो वो जब स्क्रीनिंग वगैरह होता है, फिर इंटरव्यूज होते हैं, फिर यू नो तो अभी अभी आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, बट यार आप ये सोचो कि यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अभी आप वर्जन 1 पे हो, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, राइट। So if you keep competing yourself, if you keep improving yourself, you're going to outclass everybody else, या। right? करेक्ट। Because you're going through a journey and you're improving version wise and you're improving, and after improving आप ये देखते हो कि आपने क्या क्या सीखा, नंबर 1। प्लस अगर आप ज्यादा ही प्रैक्टिकल, मतलब कि ज्यादा ही
प्रगमेटिक हो, तो आप क्या करते हो कि दूसरे की जर्नी भी देखते हो, फिर देखते हो कि उसने क्या क्या सीखा हो, क्या बन रहा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ। तो हम्म। लर्न फ्रॉम योर कॉलीग्स, राइट। तो ये सब करते हो तो यू यू बिल्ड अ प्रोसेस अराउंड यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज। करेक्ट। अगर आप ये देखोगे ना कि आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो आप नहीं, आप शायद नहीं चढ़ोगे। वो आप ये स्टेप बाय देखो कि स्टेप पहले प्रोसेस है। राइट। मुझे पहले ट्रेनिंग करना है, ऑक्सीजन की लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, फिर मुझे पहले छोटा पीक चढ़ना पड़ेगा, फिर उससे छोटा चढ़ना पड़ेगा, फिर एक दिन माउंट एवरेस्ट के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। तो राइट। दिस इवन इज द इवन ओनली थिंग। या इवन मेरा मानना है कि हिस्ट्री भी पता करनी पड़ेगी कि जो पुराने लोग गए हैं एवरेस्ट पे, उनके साथ क्या क्या मिसहैपनिंग्स हुई हैं जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। वो भी एक हाँ, तरीका होगा। राइट। सो बट इसमें जैसे आपने तो डायरेक्ट कंपनीज के लिए अप्रोच किया, राइट। हाँ, और तो आपका जो प्रोसेसिंग वीजा है, लाइक वो कंपनी की साइड से था या आपने खुद से इधर से अपने साइड से अप्रोच किया है? नहीं नहीं, वो जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो कंपनी कहती है कि भाई आप आ जाओ, आपका हम वीजा लगा के देते हैं। और मेरी कंपनी तो मुझे दो कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो बोलती है कि भाई आप जर्मनी आ जाओ। मैं जर्मनी का वीजा डिले हो रहा था क्योंकि जर्मन एम्बेसी न्यू दिल्ली में काफी ज्यादा ओके। इनवाइटीज एप्लीकेशंस थी। तो हम्म। उन्होंने मुझे दो कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, उन्होंने कहा आप इंडिया से भी काम करो हमारे लिए, और फिर जब इंडिया जैसे वीजा मिले, इंडिया कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जर्मनी आ जाना। तो दे गेव मी टू कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली टू वर्क विद देम, व्हिच ओके। इज लाइक, and they told एंड me व्हाट whatever व्हाट you दिस want. व्हाट दिस वीजा इज कॉल्ड? नाम क्या है इसका? इसका ये टाइप डी वीजा है, टाइप जो डी। कि टाइप डी लॉन्ग टर्म वीजा होता है जर्मनी का, और ये जर्मनी जाके ब्लू कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जब ब्लू कार्ड होता है तो यू आर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल। ये टाइप डी। ये उनको टाइप मिल डी कितने साल के लिए होता है? तो ये टाइप डी एप्लीकेबल। वीजा आपको आपको मिलता है 3 महीने के लिए। टाइप डी मिलता है, ज्यादा ओके। टाइम के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वो कहते हैं आप टाइप डी वीजा लेके जर्मनी से इंडिया, इंडिया से जर्मनी आ जाओ, और वहां पे आने के बाद आप इस वीजा को कन्वर्ट करो इनटू ब्लू कार्ड। उसका एक प्रोसेस होता है। तो आप पहले आ गए टाइप डी वीजा लेके, दैट इज ओनली फॉर ट्रैवल। हम्म। इट्स अ लॉन्ग टर्म वीजा ओनली फॉर ट्रैवल, ठीक है। ओके। वो टाइप डी कई बार आपको 3 महीने का देते हैं, कई बार 6 महीने का देते हैं। कोविड में 6 महीने का दिया था क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा कम हो रही थी और प्रोसेस स्लो था। वैसे 3 महीने का देते हैं। तो आप ट्रैवल कर लिए वहाँ पे, और फिर वहाँ पे जाके आउटस्टैंडर भी होल्ड है, क्योंकि फॉरेन ऑफिस होता है जर्मनी में, वहाँ जाके बोलो कि मेरा टाइप डी वीजा है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। हम्म। तो वो फिर आपकी कंपनी से बात करते हैं, एंड दे इशू यू अ ब्लू कार्ड, और वो छप के आता है वहाँ पे। और ओके। फिर वो ब्लू कार्ड की वैलिडिटी डिपेंड करती है आपके पासपोर्ट पे। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 4 साल से पहले, तो वो 4 साल से पहले ही आपका जब तक पासपोर्ट है तब तक मिलेगा, वरना आपको 4 साल का ब्लू कार्ड मिलता है। ये ओके। 4 साल के लिए आप जर्मनी में काम कर सकते हो, रह सकते हो। और वो ईयू ईयू होता है, ईयू ब्लू कार्ड, यूरोपियन। यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन। तो वहाँ पे आप यूरोप में कहीं भी जा सकते हो, और आपको वीजा नहीं चाहिए। ये यू कैन फ्रीली ट्रैवल। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल यही होता है। आप एटलीस्ट घूम तो सकते ही हो यूरोप में किसी भी कंट्री को। हाँ, ये तो है, यस। पर अभी ठंडी बहुत है, और समर्स में घूमने में मजा आता है। हाँ। हाँ। राइट राइट। और ये डिपेंडेंट वीजा का क्या सीन होता है वहाँ पे? सीन ये है कि देखो, डिपेंडेंट वीजा जर्मनी वाले, देखो जर्मनी में ना प्रॉब्लम है अभी जर्मनी में, वर्क फोर्स बहुत कम है, तो वो बहुत रिफ्यूजीज को ले रहे हैं, क्योंकि वो छोटा काम करेंगे, कारपेंटर का काम है ना, वेटर का काम, छोटा काम जो है, ठीक है। हम्म। और और फिर वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल को बुला रहे हैं बाहर से कि भाई हमारे यहाँ पे जो एडवांस काम है उनको काम करने के लोग नहीं है। तो जब वहाँ काम करते हो, वहाँ टैक्स पे करते हो, उनको पैसों की जरूरत है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए टैक्स पेयर नहीं है अभी। राइट। और क्योंकि वहाँ पे लोग बच्चे पैदा नहीं करते, वहाँ की जो पॉपुलेशन यूरोप। की जो, राइट। हाँ, मुझे जर्मनी लगता में है जो ये उनकी, मुझे लगता है ये ओनली जर्मनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे यूरोपियंस की प्रॉब्लम हो हाँ, चुकी है। करेक्ट करेक्ट, हाँ, वो लोग बच्चे पैदा बहुत कम करते हैं, उनकी पॉपुलेशन ओल्ड ज्यादा है, यंग कम है। और फिर उसको सपोर्ट करना है, पेंशन देना है, उनका हेल्थ सिस्टम है, तो वो सब करने के लिए आपको ना उनको बाहर से और लोग बुलाने पड़ रहे हैं। इसमें इसमें इंडिया सरप्लस है। इंडिया तो महान है, भारत तो बहुत महान देश है। इस देश में पैदा होना
एक गर्वान्वित मतलब एक गर्व की बात है एक्चुअली में, मतलब बहुत डेटा इसके लिए। वो डिफरेंट टॉपिक है, कभी डिस्कस करेंगे आपके चैनल पे, राइट, ठीक है। राइट। तो और वो इसमें जैसे आपने वीजा का प्रोसेस बताया, तो इसमें मैंने देखा है इस वाले फील्ड में, डेटा साइंस फील्ड में, लोग डायरेक्टली जो एज ए फ्रेशर है वो इस फील्ड को नहीं चूज करते, मतलब बहुत कम चूज करते हैं। अगर हाँ, मोस्टली जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ रहा है वो मोस्ट, मैं कह सकता हूँ कि 1% भी नहीं होंगे, राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपको क्या क्यों? लगता है कि यंगस्टर्स, आई मीन जो भी, लेट्स से अभी मैं कहूँ जो बीटेक फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में, वो इस फील्ड की तैयारी शुरू कर सकते हैं, डायरेक्टली डेटा साइंस को एज ए करियर ले सकते हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलूंगा कि यार देखो, करना वो है जो तुम्हारे दिल को स्ट्राइक करे, ठीक नहीं है। नहीं, राइट, वो और तो ठीक है, बट माय माय पॉइंट इज कि उस इस फील्ड को भी एज ए सेम सेफ समझा जा सकता है, लाइक पीपल फील की हाँ, जैसे वही मैं कह जावा रहा सीख हूँ, लेते हैं और वही मैं कह रहा हूँ, मैं पाइथन उसी सीख पे आ रहा लेते हैं। हूँ, ओके। उसी पे मैं आ रहा हूँ मुझे। ये जो लोग जावा सीख लेते हैं, पाइथन सीख लेते हैं, सीखना अलग है, पर जो तुम्हें राइट। करना है ना, वो आदमी खुद ही सीख रहा है। जैसे मुझे जो यस। करना है, मैं वो सीख लूंगा, ठीक है। तो पहले जो तुम्हारे दिल से बात है वो करना है, फिर दिल से बात आ रही है डेटा साइंस करना है, तो डेटा साइंस में जाओ। तो पहला तो ये सोचो कि डेटा डेटा साइंस में आने के लिए आपके पास तीन क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। फर्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ टू लुक एट द थिंग्स क्रिटिकली, नंबर वन। सेकेंड थिंग इज विजुअलाइजेशन, किसी भी चीज को विजुअलाइज करना। कोई आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना है, उसके पीछे मशीनरी क्या है। जैसे आपका डेटा सेट है, डेटा सेट मशीनरी से आ रहा है, वो डेटा कैसे आ रहा है ना, तो उसको विजुअलाइज करना। प्रोसेस क्या है इसके पीछे का प्रोसेस। जैसे डेटा साइंस फील्ड क्रिकेट में है, क्रिकेट को समझना, फुटबॉल में है या पैकेजिंग में, किसी भी सब्जेक्ट में है, तो उस डिसिप्लिन को विजुलाइज करना। विजुलाइज आप करेंगे तो आपको समझ जल्दी आएगा, सिर्फ समझने से नहीं आएगा, विजुलाइज हेल्प करेक्ट। करता है, ठीक है। दो दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि आस्क राइट क्वेश्चंस। मगर अगर आप सही सवाल नहीं पूछेंगे ना, तो आप उसको खोद नहीं पाएंगे प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम को खोदना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपको डेटा देते हैं, ये डेटा इस सॉल्व सॉल्व करो। आप कहते हो यार डेटा से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी यार, कैसे होगा। तो आप उससे पूछो भाई, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और ये डेटा जो है ना, क्योंकि जब मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा था, डेटा में ना, डेटा जो था वो था, क्या कहते हैं उसको, नॉन कंप्लायंट। नॉन कंप्लायंट नॉट इन द सेंस कि नॉन कंप्लायंस नहीं था, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्लायंट नहीं था। इट वाज नॉट अ, दैट डेटा could have never been a criteria to solve the business problem I was working upon. तो आई ओके। टोल्ड देम कि इस डेटा में ये कमी है, उस डेटा में अगर ये होना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो उन्होंने मुझे बोला हाँ, आप तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपके डेटा मंगाते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे डेटा मंगाया, फिर दोबारा मंगाया, फिर दोबारा मंगाया। आप सही सवाल पूछो, डेटा आएगा। फिर राइट। आपका ना, आप उसको बनाने लगोगे। तो ये तीन क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। और आपकी मोटिवेशन क्या है लाइफ में, करियर में आपको करना क्या है, ठीक है ना। राइट। राइट। आपको आपको मैं पैसा एज ए एज कमाना ए है। एज ए एज ए अपॉर्चुनिटी भी मैं पूछ रहा हूँ कि डेटा साइंस में यंगस्टर्स, आई विल से फ्रेशर्स, फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है? तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, फ्रेशर्स के लिए भी है। और देखो, डेटा साइंस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फील्ड्स। क्यों? करेक्ट। क्योंकि 80% ऑफ टाइम्स डेटा साइंस में यू स्पेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग डेटा, एंड यू कैन ओनली अंडरस्टैंड डेटा बाय दीज थ्री क्वालिटीज। तो जब ये तीन क्वालिटी आपके अंदर होंगी, तो आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो, इट डजेंट मैटर। जैसे मैं एक्सपीरियंसड हूँ, राइट। राइट। मेरा एक्सपीरियंस मुझे क्वालिफाई नहीं करता टू टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। करेक्ट। करेक्ट। माई स्किल्स क्वालिफाई मी टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, राइट। तो आपका प्रायर दी आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्लाउड और डेवऑप्स पे था, करेक्ट? राइट, राइट। क्लाउड पे था, डेवलप पे था, प्रोग्रामिंग पे था, फुल स्टैक पे था। और इसमें तो इस प्रोजेक्ट में, आई मीन नॉट प्रोजेक्ट, डेटा साइंस में अगर मैं चाहूँ कि कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है? कोई तो एक वही मैंने लैंग्वेज तो आपको रिक्वायर्ड बताया। होगी? हाँ देखो, लैंग्वेज तो आप, पहली तो बात है, प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो आपको एसेट है, ठीक है। और इसमें काफी सारी लाइब्रेरीज हैं, पाइथन में स्काई किट है, मैट प्लॉट है,
numpy pandas, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। तो पाइथन में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, अगर आपको आता, आपको पैशन है प्रोग्रामिंग, मतलब करेक्ट। यू वांट टू जस्ट कट थ्रू इट, तो भाई आप हाथ डाल दो उसके अंदर। ठीक है। और ये पैशन ना सिर्फ ये होता है कि मुझे मुझे आता है या नहीं आता है, मेरे को करना है बस भाई, मेरे को ये करना है काम, ये एटीट्यूड होना चाहिए। जब ये साइड से काम करोगे ना, तो यू कैन कट थ्रू एनीथिंग। ठीक है। तो पाइथन आना चाहिए, प्लस क्रिटिकल थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, आस्किंग राइट क्वेश्चंस। ठीक है। और ये चीजें आपके अंदर हैं, प्लस हाउ टू मेक सेंस आउट ऑफ डेटा, जो क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। तो अगर आप में ये सारी स्किल है तो यू कैन डू दिस, क्योंकि ये स्किल ना अभी बहुत अभी अभी हम लोग ना इस स्किल को यूज करें टू टू सेल थिंग्स या टू इम्प्रूव थिंग्स। अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हमें डेटा साइंस ये बताएगी कि कल भूकंप आने वाला है भाई, निकल लो यहाँ से। राइट। ठीक है। अभी उस लेवल पे नहीं है, अभी हम बहुत छोटे बेबी अभी स्टेप्स तो लेके जा स्टार्टिंग है, रहे हैं। स्टार्टिंग है, करेक्ट। स्टार्टिंग है, तो अभी घुसना आसान है यार, मतलब अभी घुस जाओगे ना अभी, तो तुम यू विल बिल्ड थिंग्स फॉर फ्यूचर। ठीक है। हम्म। हम्म। तो तो ये मत सोचो कि यार कल को प्रिडिक्शन करना है भूकंप आ रहा है, नहीं आना, ये तुम्हें नहीं करना है, ये तुम्हें बस डेटा से मेक सेंस करना है, जस्ट थिंक लाइक दैट एंड गो और एंट्री लेवल पे अगर मैं कहूँ कि डेटा साइंस पे जो काम कर रही हैं कंपनीज, वो हेड। मेजरली एमएनसी ही हैं या स्मॉल कंपनीज भी काम कर रही अब देखो, ये ओपन एआई कंपनी थी हैं? ओपन एआई, भाई, बहुत करेक्ट, बढ़िया चैट कंपनी। जीपीटी। चैट जीपीटी भाई देखो है। राइट, राइट, राइट। अब इसके सारे मॉड्यूल जो है उसने खरीदे माइक्रोसॉफ्ट ने। अब उन्होंने फिर एमएस स्टूडियो लॉन्च करा है। ठीक है। एलोन मस्क का भी तो उसमें यार, एक वो है, स्टेक्स है उसमें, राइट। हाँ हाँ। ओपन एआई तो में। अभी अभी पता है क्या है कि बड़ा आदमी बड़ा काम नहीं करेगा, जरूरी नहीं है, कर भी सकता है। छोटा आदमी बड़ा काम करता है, बड़ा आदमी से खरीद लेता है। राइट। राइट, राइट। तो एज अ फ्रेशर, ये सब ना सोच के अगर आप ये सोचो कि आपको इस फील्ड में काम करके अपने आप को स्किलफुल बनाना है, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल इंस्टेड ऑफ हम्म। थिंकिंग अबाउट यार कि इस पे बड़ी कंपनियां हैं या नहीं है, है ना। आज के टाइम में बड़ी और छोटी हर कंपनी डेटा साइंस, एआई, एमएल में घुसी हुई है, क्योंकि उसे पता है यही फ्यूचर है। हम्म। कल को कोई भी काम होगा ना, अगर मशीन लर्निंग के बॉट्स करेंगे या करेंगे, तो आप ये तो कॉस्ट कम कर लेंगे, एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। और वाइल डूइंग दैट आपको ना एरर रिजेक्शन रेट कम लाना है, क्योंकि कोई काम इंसान कर रहा है तो उसका जो रिजेक्शन रेट है बहुत कम है, उसमें गलतियां कम होंगी। बट कोई काम मशीन कर रही है तो शायद एरर रेट इससे ज्यादा होगा। तो अभी सारी कंपनियां ये देख रही हैं। आप जिस कंपनी में हो ना, उस कंपनी में भी एमएल मॉड्यूल होगा, कोई एमएल है, डिपार्टमेंट होगा, राइट, मशीन राइट, लर्निंग राइट। डिपार्टमेंट। करेक्ट। ये मत बट सोचो बट कंपनी बट बड़ी मैंने बट कंपनी। मैंने देखा है कि एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम रखते हैं उस फील्ड में। बाकी अभी वो एक्चुअली आई थिंक स्टार्टिंग फेज है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट फ्यूचर इसलिए वो कम है। ऑनवर्ड्स ये फील्ड बहुत ग्रो करने वाला है। हाँ बिल्कुल सही। और वो कम इसलिए है क्योंकि अभी अभी ना ऑब्जेक्टिव क्वांटिफाइड नहीं है कि इससे अचीव क्या करना है हमें। करेक्ट। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो छोटी छोटी टीम्स हैं, और स्मॉल टीम्स आर मोर एफिशिएंट। 70 लोगों की टीम थी, उन्होंने आईओएस निकाला भाई, अभी तक मस्त है। फोन, एप्पल फोन, आईफोन चल रहा है। करेक्ट। 1000 लोगों की टीम थी भाई, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का वो निकाला, फोन आईओएस, वो माइक्रोसॉफ्ट ओएस विंडोज। फॉर मोबाइल। वो भाई वो फोन भाई चला नहीं आता। तो लोग हाँ, जो काम डिपेंड छोटी करता टीम है, करती है ना, डिपेंड करता है, राइट, राइट। मैंने इवन सुना छोटी छोटी टीम। टीम्स डू मोर वंडर्स देन बिगर टीम्स। हाँ, क्योंकि क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और कम्युनिकेशन। ज्यादा ज्यादा क्योस नहीं आता, जितने दिमाग करेक्ट, होंगे ना उतनी गलतियां बढ़ जाती हैं। करेक्ट। और तो लाइक तो सो इस टॉपिक से बढ़ते हैं आगे। आप कितना टाइम हो गया आपको जर्मनी में रहते हुए अभी? अभी अभी मुझे क्लोज टू 1.5 years हो गए हैं। ओके। बात कर लेते हैं पैकेज पे। तो अगर आप थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहोगे कि अगर डेटा साइंस में एंट्री लेवल कोई बंदा आता है, लाइक फ्रेशर हम्म। आता है, तो हम्म। इंडिया में और जर्मनी में क्या क्या पैकेजेस वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार देखो, आज के टाइम में ना इस पे इतनी फंडिंग हो रही है डेटा साइंस पे, मशीन पे, कि आप बस अपने आप को बेचना आना चाहिए भाई, पैसे की कमी नहीं है। राइट।
चाहे आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आपने अपने को बेच दिया और आपने समझा दिया कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये मेरा पीओसी है, ये मेरी स्किल है, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तो पैसे की भी काम ही नहीं है। इंडिया का मुझे पता नहीं कितना मिलेगा, बट इंडिया में आजकल बहुत बूम चल रहा है। हम्म, अगर आप इंटरनेशनल काम करने आते हो तो यहाँ पे रूल्स हैं कि ब्लू कार्ड में मिनिमम इतनी सैलरी होगी तभी आपको ब्लू कार्ड मिलेगा, तभी आपको टाइप डी ओके। परमिट को मिलेगा, वहां से मिलेगा, हम्म, राइट। हम्म, तो वो 43,000 यूरोज भी है ब्लू कार्ड की, जो यहाँ से पढ़ाई करते हैं। और जो बाहर से आते हैं उनकी 55,000 या 60,000 यूरोज है, बस नंबर्स नहीं है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, बट पैसा अच्छा है। आपको खाने पीने की कमी नहीं होगी, रहने की कमी नहीं होगी, बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मनी, फोकस ऑन योर स्किल्स एंड इम्प्रूव। तो फिर पैसे की कोई लिमिट नहीं है, पैसा राइट राइट। बहुत है इस फील्ड में। करेक्ट। हाँ। वो तो खैर प्रेशर जब एक बार घुस जाता है तब उसको पता चल ही जाएगा, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब स्टार्ट करनी की, कि प्रेशर है अगर, हाँ। तो वो स्टार्ट क्या कर, मतलब अगर करेगा तो उसमें क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी उसकी, वो हाँ। मेरा। ओके। तो जर्मनी में जैसे आपने बताया कि आप ऑलमोस्ट 2.5 साल से ऊपर आप रह चुके हो, तो आपको क्या अच्छा लगा वहाँ पे, क्या सबसे ज्यादा अच्छी चीज है वहाँ पे जो मेरे आपको को यार देखो, इम्प्रेस किया? मेरे को तो भाई नेचर बहुत पसंद है, पीछे तुम्हें मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है। राइट। तो मैं जर्मनी में रुका इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन, वहाँ का फूड स्टैंडर्ड वर्ल्ड में बेस्ट है, फूड स्टैंडर्ड की हमें जो खाए अच्छा खाए। नेचर बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जर्मनी में रूल्स बहुत स्ट्रांग है, पीपल बिलीव इन रूल्स। तो यहाँ पे अनसेट रूल्स हैं हर चीज के, रोड क्रॉस करने के, लाइन में लगने के, किसी से मिलने के, बात करने के, हर चीज के प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, जर्मन प्रोटोकॉल्स। तो जब पूरी पॉपुलेशन रूल में रहती है ना, तो एक कंट्री सिमेट्रिक डेवलपमेंट करती है। जर्मनी नंबर 4 है वर्ल्ड में, जर्मनी इंडिया से ऊपर है। उसके ऊपर जापान है, और फिर चाइना, फिर और यूएस है। सबसे हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपने बताई नहीं, वेदर। वेदर यहाँ पे 3 महीने अच्छा है, गर्मी होती है। हाँ। फिर यहाँ पे इतना विंडी होता है, अभी खिड़की खोलेंगे ना भाई, यहाँ की जो क्लाउड मूवमेंट है ना, इंडिया में तो क्लाउड चिपक के आसमान में एक ही जगह रहते हैं। हम्म। यहाँ पे यू कैन लिटरली सी क्लाउड फ्लोटिंग इन द स्काई, यहाँ पे इतना विंड है ना जर्मनी में, राइट बहुत राइट। तगड़ा विंड है। और ठंड जब यहाँ पड़ती है तो भाई जय माता दी। हाँ। तो राइट राइट। मतलब ठीक है, मगर फिर भी देखो इंडिया में मेरे ख्याल से फूड स्टैंडर्ड इतना सही अच्छा नहीं है, पोल्यूशन है, या फिर इंडिया का खाना नहीं मिलता है यहाँ पे, तो खुद बनाना आना चाहिए, वो तो स्ट्रगल बनाने वाला बहुत है यहाँ चाहिए। पर। एक स्ट्रगल आई है यहाँ पे। थिंक आपको इश्यू आया होगा कि यहाँ पे मेड नहीं रख पा रहे होंगे। हाँ, यहाँ पे मेड नहीं मिलती है, मेड आप रख सकते हो, कॉस्टली वो उसकी पड़ेगा बड़ी ना। महंगी, कॉस्टली बहुत महंगी पड़ेगा। पड़ जाएगी भाई आपको। राइट हाँ। राइट। हाँ, तो वही है। और लाइक नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सेशन। आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि वहाँ पे टैक्स कितना है? जैसे कम इंडिया में तो टैक्स अभी मुझे लगता है हाई पे चल रहा है। तो जो टैक्स है जर्मनी में, वो यार सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पे आप टैक्स इंडिया से ज्यादा देते हो, मगर आपको बेनिफिट बहुत मिलता है, जैसे कि आपको डॉक्टर के पास जाओ, आपको डॉक्टर को कंसल्टेशन फीस नहीं देनी। हम्म, ठीक है। आपको कोई भी इलाज है फ्री ऑफ कॉस्ट हो, कोई पैसा नहीं देना, अनलेस कि वो इलाज आपको डॉक्टर में रिकमेंड ना कराओ और आप खुद ही करा रहे हो। गवर्नमेंट डॉक्टर जब तक आपको रिकमेंड नहीं करेगा तब तक आप कुछ करा नहीं सकते, कराओगे तो पैसे देने पड़ेंगे, वरना सब फ्री है। ठीक है। हम्म, तो हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ का। और दवाई जब लेते केमिस्ट से, तो अगर आप हायर इनकम ग्रुप में आते हो तो आपको 100 यूरो की दवाई 5 यूरो में मिल जाती है। हम्म, ओके। और अगर आप लोअर इनकम ग्रुप में आते हो तो 100 यूरो की दवाई फ्री में मिल जाती है। ओह, नाइस। और फिर क्योंकि यहाँ पे जो भी दवाई लेते पर्क्स हैं ना, ज्यादा हैं, वो पर्क्स ज्यादा हैं भाई। यहाँ पे जो भी तभी दवाई भी लेते हैं बड़ी तभी भी महंगी है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कितना टैक्स लगता है? 40 के आसपास लगता है अगर आप फोर्टी सिंगल हो, परसेंट अनमैरिड हो। ओके। हाँ। ओके। और अगर आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, वाइफ है तो टैक्स कम हो जाएगा, बच्चे हैं टैक्स और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ज्यादा कमा रहा है और उसकी जरूरत, तुम अगर अकेला है तो उसे टैक्स ज्यादा लेंगे टू हेल्प अदर पीपल। और ज्यादा, कोई कोई ज्यादा कमा रहा है, बीवी बच्चे हैं, तो टैक्स कम हो जाएगा क्योंकि उसे बीवी बच्चे को भी पालना है अपने। ठीक है। ये तो ये ये सोशल बेनिफिट्स क्या, ये रूल थोड़ा सा ये डिफरेंट है। बहुत। ये इंडिया में नहीं है। हाँ। ये रूल थोड़ा प्लस डिफरेंट है।
आपका हेल्थ इंश्योरेंस है प्लस आपका अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है। अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आपकी सैलरी का 60 to 70% पार्ट आपको फ्री में पे करते हैं, क्योंकि आपने ओह इतने साल वाह। टैक्स दिया है। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप भाई घर में बैठे हो, आपके बीवी बच्चे पालने हैं, आपकी रोटी खानी है, तो आपको हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, मगर आप नौकरी ढूंढो। ठीक है, तो वो एक मतलब इशू, सोशल मतलब आपने सोशल गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी है आपके आपकी, देखा हाँ जाए तो। सोशल सिक्योरिटी है प्लस, तो ये टैक्स के बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हर स्टेट का अपना टैक्स का वो है स्लैब, हम्म, मगर मोर ओवर हर जगह यही है, 40%, 35%, 30%, दोनों काम करते हैं। तो अलग अलग टैक्स क्लास है, यहाँ पे 6 टैक्स क्लास हैं, और हम्म, डिपेंड करता है आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आप डिवोर्स्ड हो या आप विडो हो या सेपरेटेड हो, या आप जर्मनी में के नेशनल हो, कहीं और नौकरी कर रहे हो, तो आप कितना टैक्स पे करोगे जर्मन गवर्नमेंट को, तो उसके हिसाब से टैक्स क्लास यहाँ पे डिसाइड डिसाइड होती है। ओके। और लाइक एटलीस्ट थोड़ा इंसाइट मिला। ये जरूरी चीजें हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती। लोग स्विच मूव हम्म कर जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन हम्म उन्हें बाद में जाके पता चलता है कि कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा टैक्स कट रहा है, बट उन्हें पता होना चाहिए कि ये सोशल सिक्योरिटी टैक्स जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही कह रहे हो। फिर यहाँ पे पेंशन मिलती है, यहाँ पे कोई भी नौकरी करो ना, प्राइवेट या सरकारी, हर नौकरी में आपको पेंशन मिलेगी रिटायर होने के ओके। बाद। ओके। मगर आप जर्मनी में रहोगे तो ही पेंशन मिलेगी, जर्मनी से आप चले जाओगे बाहर कैसे, मतलब काफी लोग पुर्तगाल में सेटल हो जाते हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, पेंशन जर्मनी से लेते हैं। तो अच्छा। ईयू में हो तो पेंशन मिल जाएगी आपको, बट ईयू के बाहर जाओगे तो आपको कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। You have to retain your resident status to get all the benefits for the long term. अगर आप सोचो कि भाई मैं यहाँ पे कमाऊंगा, पेंशन मुझे इंडियन में देंगे, तो नहीं देंगे। और पेंशन आपको मिलेगी अंटिल यू आर हेयर, तो ये बेनिफिट है। ओके। और बीटेक इज इनफ टू मूव टू जर्मनी, अभी और तो देखो यहाँ पे इन्होंने, मास्टर्स इज मास्टर उसमें। अभी तो जर्मनी ने रूल्स काफी रिलैक्स कर दिए हैं, तो आप बीटेक हो या ना हो, डजेंट मैटर। इफ यू वांट टू कम हियर एंड वर्क, यू कैन डू दैट। ठीक ओके। है। क्योंकि अभी इनको बहुत प्रोफेशनल चाहिए। अभी एक रिसेंटली एक नया इन्होंने वीजा लॉन्च किया है, अपॉर्चुनिटी कार्ड। वो 1 साल का वीजा है, और उसमें आपके 14 पॉइंट्स होते हैं, आपको 6 पॉइंट मिल जाते हैं, तो आप 1 साल यहाँ पे आके रह सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो। वो जीएसपी जॉब सीकर वीजा से भी अच्छा है। ओके। तो अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे ईयू में, तो आप पहले देखो क्या काम करना है, तो कोई ना कोई रूल होगा जो आपको ये काम दिलवा देगा। ठीक है। तो या तो और लाइक, वीजा मत बताओ। so Samir, I am done with my questions. You have anything to share with the youngsters who are pursuing BTech third year, final year, who wanted to make his career in data science? We want to share anything for them? हाँ, तो मैं भी इनसे ये बोलूंगा कि आप लोगों ने बीटेक चूज किया और अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, मुझे पता नहीं ये आप कि आपने चूज किया या आपके घर वालों ने चूज किया, या कंपटीशन में चूज हो गया, या नंबर बहुत ही अच्छे थे तो बीटेक ही Right. ले लेते हैं। Okay. ये जॉब में जो भी किया हो, अब जहाँ पर भी हो, अब यहाँ से सोचो कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, व्हाट गिव्स यू मोर सेटिस्फैक्शन एंड व्हाट आर यू प्रैक्टिस। तो उस चीज को अगर विजुलाइज करके अपने करियर में आगे बढ़ोगे ना, तो आई बिलीव कि यूनिवर्स लिसन्स टू यू एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू यू। So whatever goals you put forward, plan as per that, and मैं रिकमेंड करूँगा मेडिटेशन लोगों को, क्योंकि मेडिटेशन करने से काफ़ी क्लैरिटी आती है माइंड में, एंड यू गेट टू कनेक्ट विद यूनिवर्स। क्वांटम एंटेंगलमेंट जिसे कहते हैं कि इस दुनिया में एवरीथिंग इज कनेक्टेड क्वांटम लेवल। तो वर्ल्ड में काफ़ी एग्जाम्पल्स है, रामानुजन है, निकोलस टेस्ला, आइंस्टाइन, जो लोग used to connect with universe at a quantum level and used to get knowledge from it। जैसे रामानुजन था, वो नींद में उसको सपने आते थे,
थॉट एक्सपेरिमेंट करता था, आइंस्टाइन विजुलाइज करके। निकोलस टेस्ला का अलग एक स्पेक्ट्रम था, वो भी काफी सोचता था। तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो आई गेट आंसर्स टू व्हाट आई एम लुकिंग फॉर डीप इनसाइड। क्योंकि आपके तीन कॉन्शियस लेवल होते हैं, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और एक थर्ड भी होता है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड देन द कॉन्शियस, राइट? तीन इन द पार्ट हो गए। कॉन्शियस, हाँ राइट। तो दो अभी मेरा कॉन्शियस पार्ट एक्टिव है, और अनकॉन्शियस पार्ट तब एक्टिव होगा जब मैं सो जाऊंगा, राइट? तो इन तीनों पार्ट में ना एक सिमेट्री तभी आएगी। सिमेट्री होना अच्छा रहता है, और सिमेट्री तभी आएगी जब हम मेडिटेशन करेंगे, क्लैरिटी रहेगी। तो योर अनकॉन्शियस माइंड विल गिव प्रॉब्लम्स टू योर कॉन्शियस माइंड, एंड देन while you are asleep, sometimes unconscious mind wakes up to find solutions to the questions of conscious mind, because consciously you're not able to answer those problems. राइट राइट। आई ऑल्सो तो बिलीव, मेडिटेशन करो। I also हाँ, believe like anybody, any individual can improve their work capability, efficiencies, and their day-to-day life with meditation. I also believe, like deeply believe in that. हाँ, तो बिलीव के साथ अगर आप प्रैक्टिस करो, और आपको बिलीव भी नहीं है तो Correct. प्रैक्टिस करो, इट विल हेल्प यू, इट हैज हेल्प मी, इट हेल्प्स एवरीबॉडी। और and then if you meditate and if you have the right visualization towards your career, what you want, तो आप बीटेक में भी गलती से घुस गए हो और आपको मार्केटिंग में जाना है, तो तो यूनिवर्स विल टेक यू देयर। क्योंकि Yeah. मैं देखो, मैं अपने फील्ड्स को काफी बार मैंने चेंज करा करियर में, बिकॉज आई वांटेड टू डू इट, एंड आई वाज सक्सेसफुल डिस्पाइट डूइंग नो ट्रेनिंग, नो कोर्स, just by learning, consciously learning and thinking about problems. And I think this is a good template for everybody to actually learn new things and get into new things. और आजकल तो ऑनलाइन लर्निंग का जमाना है, तो आप कुछ मुझे लिंक्स आप शेयर कर देना, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एटलीस्ट जो भी उनसे हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहें वो एटलीस्ट कर ठीक सकते हैं। है। Because I'll you put some might link. be learning from somewhere, so at हम्म, least it will benefit. या ठीक है। All right. आज के यूडेमी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो Right, correct. बट आई पुट सम लिंक्स। ओके समीर, तो आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात हुई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, एंड थैंक्स फॉर कमिंग ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस। अरे थैंक भाई, 2 हफ्तों में आया हूँ, शॉर्ट नोटिस पे तो नहीं यू। आया। और थैंक यू यार फॉर इनवाइटिंग मी एज योर फर्स्ट गेस्ट।